Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 4 of your EVS book. And name of the chapter is Houses We Live In. Children, we have already completed 3 chapters. First 3 chapters we have already completed. And the fourth chapter explanation is going on. In today's video, I will be continuing the explanation of the chapter. So far, whatever we have completed, let me revise that for you. वो सारा मैं आपके लिए रिवाइज कर दूँगी. I hope you all are going through the videos, and of course in online classes you are there, but do watch videos regularly. Written work is all given here. All the topics are explained in detail in the video classes. Children, note down the doubts if you have any, and then you clear those doubts in the video classes. In online classes you have to clear your doubts. Okay, let's revise what we studied in this chapter. Children, we studied about house. What is a house? House is a place where we live in. It has doors, it has window, it has rooms, or it may have one room. We live in house because it protects us from heat, cold, rain, wild animals, dacoits, thieves, etc. It gives us shelter, and we all live in home, isn't it? We all live in home, but you know that there are many poor people who do not have home to live in. बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अभी भी घर नहीं है. वो रोड साइड रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं. So by looking at them we can realize the importance of our house. हम अपने घर में कितना सेफ हैं. धूप होती है तो हम घर में बैठे रहते हैं कि बाहर लू लग जाएगी. बारिश होती है तो हम घर में रहते हैं कि भीग जाएंगे. ठंड होती है तो हम अपने घरों में रजाइयों में दुबक के बैठते हैं, हीटर ब्लोअर जला के, बिकॉज वी फील सेफ, वी फील प्रोटेक्टेड इन आवर होम. थिंक ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव होम. जिनके पास घर नहीं होता, सोचिए उनकी कैसी कंडीशन होती होगी. सो चildren, house is very important for us. Children, depending on the material used, houses can be divided into 2 parts. जिन मटेरियल से घर बने होते हैं उनके बेसिस पर इस पॉइंट पे हम घर को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं. एक होता है पक्का हाउस और दूसरा होता है कच्चा हाउस. दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. पक्का हाउस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हाउस. इट इज़ made up of bricks, cement, sand, iron rod, steel, wood. All these materials are used to make pakka house, and they are permanent house. Permanent house means they are not it is not required to make again and again. Once they are made, they are made. After they are constructed, they need only repairing, but not very frequently. They are permanent, so we need not have to make them again and again. We need not have to build them again and again. Okay. Kacha house are not that very strong. They may fall. They need repairing constantly. They are not durable house, and they are made up of mud, wood, leaves, sticks. All these things are used for making a kacha house. Children, generally pakka houses we can see in cities, cities, towns, and metro cities. But nowadays in village also we can see pakka houses. Kacha houses can be seen mostly in villages and sometime in cities also, depending on the economic condition of person. अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो कच्चे हाउस में भी रहते हैं. कुछ लोग तो ऐसे घरों में रहते हैं दैट वी कैन नॉट थिंक ऑफ लिविंग इन, एंड देन वो पोलोथीन का घर से सिर्फ पोलोथीन से शेड बनाकर एक टीन जो होता है उससे रूफ बनाकर रहते हैं. दैट सच टाइप्स ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड स्लम्स. जहाँ झुग्गी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आप घर देखेंगे तो कैसे होते हैं, सिर्फ कपड़े से कवर कर देते हैं, प्लास्टिक से कवर करके एक स्क्वायर जैसा बना लेते हैं और उसमें लोग रहते हैं. दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज हाउस, बट पीपल लिव. ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं जो बहुत गरीब होते हैं. वो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनको हम स्लम्स के नाम से जानते हैं. हिंदी में हम झुग्गी बोलते हैं.
और ऐसे घर जो होते हैं बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होते हैं। बरसात आती है तो गिर जाता है, कभी बहुत तेज़ हवा बही तो छत उड़ जाती है, क्योंकि छत होती ही नहीं, वो तो टिन से लगाया रहता है, ठीक है। और जो वॉल्स होती हैं वो भी बहुत ही ऐसी चीज़ों से बनी होती हैं जो टिक ही नहीं सकती। इधर दैट विल बी अ कार्डबोर्ड और सम क्लॉथ और सम टिन, ऐसा ही मटेरियल से होता है, तो वो इजीली इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ब्रेक, ऐसे मटेरियल से बना होता है। इसी को हम कहते हैं जो उसको हम घर बोल ही नहीं सकते इनफैक्ट, बट पीपल लिव, ऐसे बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो ऐसे घरों में भी रहते हैं। और ये पूरे एरिया जहाँ पे ऐसे घर बने होते हैं उनको हम स्लम के नाम से जानते हैं। चिल्ड्रन, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस की, जो प्रॉपर हाउस होते हैं हम उसकी बात हम कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑफ कोर्स उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। अभी तो हम टाइप्स ऑफ हाउस की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था, पहला हमने बात किया था कारवा। कारवा इज़ एक्चुअली हाउस ऑन व्हील, इट इज़ ए मूविंग हाउस। वो एक जगह, उसके अंदर सारी जो बेसिक ज़रूरत के सामान होता है उस घर में होता है, और फिर जो लोग ट्रेवल करते हैं वो अपना घर अपने साथ में लेकर चलते हैं। दैट व्हीकल, दैट व्हील कैन बी अ मॉडर्न व्हीकल, इट कैन बी अ कार्ट में भी हो सकता है, या मॉडर्न व्हीकल भी हो सकती है, जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो अपना बेसिक सामान लेकर they move on. Then we talked about tent. Children, tent is also a temporary house. When someone has to live at some place for short duration, there they use tent. It is made up of canvas. Sometimes it is made up of nylon also. And as I told you that when people have to live for short duration, they live in tent. Soldiers रहते हैं, campers रहते हैं ऐसे tent में. And tents can be folded and it can be taken from one place to another. Makeshift कर सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ टेंट लगा लिया, जब ज़रूरत ख़त्म हो उसको निकाल कर उसको फोल्ड करके दूसरी जगह भी जा सकते हैं। Then we talked about house boats. House boats होते हैं, they are floating houses. These houses float on water, and many people live in house boats, especially in Kashmir and Kerala. And these houseboats are often used by tourists also, the people who visit such places and they live in such houses. Then we were talking about igloos. हम igloos की बात कर रहे थे, okay? Igloo किसको बोलते हैं? जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, इग्लू तो ज़रूर ही सुना है। आई फॉर इग्लू करके बच्चे UKG या 1 में पढ़ते हैं, है ना? आई फॉर इग्लू। चिल्ड्रन, इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक या स्नो से बना होता है इग्लू, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ आइस ब्लॉक और यू कैन से स्नो। ये इस घर में कौन रहता है? एस्कीमोस लिव इन इग्लू। एस्कीमो लोग जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में भी आपको लिख के देती हूँ, बिकॉज एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा बहुत किया था आपके लिए, अब मैं इसको लिख देती हूँ, ओके। सो इग्लूज आर they are house BUILT built of snow. They are house built of snow. ये snow से बने होते हैं, ओके। These houses are also called snow hut. These houses are also called snow hut. स्नो हट भी कहा जाता है इसको। इसका शेप कैसा होता है? डोम जैसा, एक ऐसा ना, समथिंग लाइक दिस। इट इज़ डोम्ड शेप। दे आर, क्योंकि हम बहुत सारे यूज़ की बात कर रहे हैं, दे आर डोम शेप।
एस्कीमोज या इन्यूट्स बोलते हैं, वो इसमें रहते हैं। एस्कीमोज, ESKIMOS, ठीक है। एस्कीमोज लिव इन इग्लूज। एस्कीमो लोग जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये ना ग्रीनलैंड या आइसलैंड जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पर ये घर मिलते हैं। स्नो के ब्लॉक्स से इसको बनाया जाता है। कोई भी ऐसे बर्फ़ लेके इग्लू नहीं बन सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा जो स्नो है वो सूटेबल है इग्लू बनाने के लिए। कोई भी ऐसा स्नो उठाकर उससे इग्लू नहीं बन सकता है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि एस्कीमोज रहते हैं, लोग इसमें रहते हैं। जो एस्कीमोज लोग कौन होते हैं, वो बहुत ही ठंडी जगह पे रहने वाले लोग होते हैं। अब आप सोचेंगे कि बर्फ़ के घर में कैसे रहते होंगे, क्या वो उन्हें ठंड नहीं लगती होगी। तो एस्कीमोज जहाँ रहते हैं वहाँ ऑलरेडी बहुत टेम्परेचर लो रहता है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब माइनस में होता है। जहाँ पे ये इग्लूज होते हैं ना, तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसको बोलते हैं ना माइनस में, -50 रहता है। तो उसके कंपैरिजन में अंदर का जो टेम्परेचर होता है, इग्लू के अंदर का टेम्परेचर जो होता है बाहर के टेम्परेचर से काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। बाहर जितनी कड़ाके की ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो अंदर इग्लू के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा होता है, वार्मर होता है, ठीक है। फिर और इसके बारे में आपको मैं क्या इग्लू के अंदर हम आग जला सकते हैं? एक्चुअली इतनी ज़्यादा ठंड रहती है कि अगर आग जलाओगे भी अंदर आग, तो इतना नहीं है कि वो स्नो मेल्ट कर जाएगा, इतनी जल्दी वो स्नो मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो कभी इग्लू में रहेंगे नहीं। और जो लोग रहते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया आपको कि एस्कीमोज रहते हैं, और ऑफ कोर्स ये अंदर से गर्म रहता है कंपेयर टू व्हाट इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड, ठीक है। तो ये हो गया इग्लू के बारे में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस, एंड दैट इज़ क्या है नेक्स्ट, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस के बारे में बात करेंगे। जल्दी इरेज नहीं होता, यही प्रॉब्लम है ना इसमें। मार्कर से लिखते हैं तो लाइट हो जाता है, चॉक से लिखते हैं तो ज़्यादा डार्क हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टिल्ट हाउस की। STILT, स्टिल्ट, HOUSE। स्टिल्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं चिल्ड्रन? स्टिल्ट हाउस ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ बहुत बारिश होती है, वेयर इट रेन्स अ लॉट। बहुत बारिश होती है वहाँ पाया जाता है, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है बारिश की वजह से, ऐसी जगह पे पाया जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं वहाँ पर, दे मेक हाउस ऑफ वुड, लकड़ी का घर बनाते हैं। और वो जो हाउस होता है वो एक प्लेटफॉर्म जैसा होता है, उसके ऊपर बनाते हैं। मतलब बैम्बू का पहले एक प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं, फिर उसके ऊपर घर बनता है, जिसको हम कहते हैं स्टिल्ट। दे मेक स्टिल्ट विद बैम्बू, और फिर उसके ऊपर घर बनाते हैं। नीचे पहले एक फ्रेमवर्क बनाते हैं बैम्बू से, स्टिक से, और उस स्टिल्ट के ऊपर फिर घर बनता है, ताकि घर के अंदर पानी ना घुस जाए, ताकि पूरे टाइम घर भीगा ना रहे। जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जैसे असम है ना, वहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है, तो वहाँ पे स्टिल्ट हाउस अक्सर देखने को मिलेंगे। क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है, वाटर लॉगिंग बहुत हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि पानी हो सकता है घर के अंदर ही घुस जाए, तो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह के स्टिल्ट बनाकर उसके ऊपर घर बनाते हैं। और ये घर वुड के होते हैं, वुडन होते हैं, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको ये स्टिल्ट हाउस देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में पहले लिख लेते हैं हम स्टिल्ट हाउस के बारे में। दीज हाउसेस, थोड़ा इसको और इरेज कर दें अच्छे से। ओके, these houses are found where
it rains heavily and water is blocked. जहाँ अक्सर पानी जमा हो जाता है, बहुत बारिश होती है, ऐसे जगह पे आपको स्टिल्ट हाउस मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, पीपल मेक हाउसेस ऑन bamboo stilt. बैम्बू का स्टिल्ट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म जैसा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वो लोग घर बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। जो नेक्स्ट है, हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करने वाले हैं घरों की, घर के छत के बारे में बात करेंगे कि घरों के छत कैसे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। मटेरियल जो वहाँ यूज़ होता है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। ठीक है, ये आपने स्टिल्ट हाउस का देख लिया। अच्छा, एक और मैं हाउस आपको बता दूं, शहरों वाले हाउस को हमने भी डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ ये सारे हाउस डिस्कस किए ना। लेट्स डिस्कस अबाउट सम बंगलोज एंड फ्लैट्स एंड मेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा, फिर बात करेंगे हम रूफ्स के बारे में। जो शहर के घर होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाउस इन सिटीज़। आप सबसे पहले तो फ्लैट्स की बात करते हैं। ठीक है, फ्लैट्स जो होते हैं 2 रूम के भी हो सकते हैं, 3 रूम के हो सकते हैं, मोर देन 3 रूम के हो सकते हैं। फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि एक अकेला फ्लैट नहीं होता है, उसके साथ और भी घर होते हैं। ठीक है, फ्लैट्स में क्या होता है कि और भी घर होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें फ्लोर्स बने होते हैं और फिर उसके बाद उस फ्लोर में फिर बना रहता है, जैसे फ्लोर वाइज रहता है, फ्लोर बने हैं और हर फ्लोर पर कुछ सेट्स बने होते हैं ऑफ हाउसेस, सेट्स ऑफ हाउसेस, तो उसको हम फ्लैट्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपको ना शहरों में ही देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड सच हाउसेस इन सिटीज़, फ्लैट्स जो सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बंगलोज़ की। बंगलोज़ क्या होते हैं, दे आर वेरी बिग हाउसेस। बंगलोज़ आर, पहले फ्लैट हमने बताया, बंगलोज़। ठीक है, ओके, तो बंगलोज जो होते हैं दे आर वेरी बिग हाउस एंड दे आर जनरली सिंगल स्टोरी, मतलब वो इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, उसके ऊपर कोई घर नहीं होता, दे आर इंडिपेंडेंट बिग हाउसेस। ये भी आपको ज़्यादातर आपको शहरों में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगलोज जो होते हैं। फिर बात करते हैं हम मेंशन्स की। मेंशन्स मतलब जिसको हम कहते हैं ना हवेली, तो ये आपको गांव में भी मिल जाएगी और शहरों में भी मिल जाएगी। मेंशन्स क्या होते हैं, दे आर वेरी ह्यूज हाउसेस, बहुत ही बड़ा घर होता है। फिर जनरली ये भी इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, सिंगल स्टोरी होते हैं, इसका प्रीमिसेस बहुत बड़ा होता है। पहले जो बड़े बड़े रिच लोग होते थे वो लोग मेंशन्स में रहते थे। ठीक है, तो ये आपको शहर में भी मिलेगा और कहीं कहीं गांव में भी मिल जाएगा, जिसको हम हिंदी में हवेली बोलते हैं। उसके बाद एक और टर्म होता है फार्म हाउस, ये आपने नाम सुना होगा, फार्म हाउस। ये शहरों का नया कल्चर है फार्म हाउसेस का। जो बहुत रिच लोग हैं वो अपने फार्म हाउस भी बनाते हैं, ये भी एक तरह का लग्जूरियस हाउस होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ ग्रीनरी होती है, फार्म्स होते हैं, उसके बीच में एक बड़ा ही अच्छा सा घर बना होता है, उसको बोलते हैं फार्म हाउस। ठीक है,
फिर फ्लैट्स हो गए, बंगलोज हो गए, मेंशन्स हो गए, फार्म हाउसेस हो गए, स्काई स्क्रैपर्स, जो इसके बारे में मैंने आपको बोला था, स्काई स्क्रैपर्स क्या होता है? स्काई स्क्रैपर्स आर वेरी टॉल बिल्डिंग्स, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं एज इफ दे आर टचिंग द स्काई, इसीलिए इनका नाम होता है स्काई स्क्रैपर्स। इसलिए इसको स्काई स्क्रैपर्स बोलते हैं, लगता है कि आसमान को छू रहे हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं गगनचुंबी इमारतें, मतलब जो आसमान को लग रहा है कि जाके टच कर लेंगी, तो इसीलिए दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। ये भी आपको बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलेगा। फिर पैलेस, जो आजकल बहुत कम है लेकिन है, पहले के पैलेसेस हैं जिन्हें हम महल बोलते हैं हिंदी में। तो पैलेस भी एक टाइप का हाउस ही है जिसमें कि किंग्स लोग रहते थे। और अभी भी पैलेस हैं जिनको म्यूज़ियम बना दिया गया है, या कुछ राजस्थान में आपको अभी बहुत ऐसे पैलेसेस मिलेंगे जो अब होटल्स बन चुके हैं, या कुछ जो पहले के जो किंग्स थे ना उनकी फैमिली रहती है पैलेस में। तो पैलेस क्या होता है? ये भी बहुत ही ह्यूज हाउस होता है विथ मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स होते हैं इसमें, बहुत सारे हॉल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो पैलेस हो गया, ये शहर की चीज़ें हो गई। उसके बाद अपार्टमेंट फ्लैट्स मैंने आपको बता ही दिया। एक होता है विला। विला भी क्या होता है? इसमें भी रिच लोगों का ही एक घर होता है, विला बोलते हैं इसको। ये भी फुल ऑफ लग्जरी होता है, लग्जूरियस होता है। और इसमें प्राइवेट लॉन्स होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, गार्डन होता है विला में, ठीक है। ये भी रिच लोगों का ही घर होता है विला। उसके बाद एक टर्म मैंने आपसे यूज़ किया था, पेंट हाउस। पेंट हाउस क्या होता है? ये होता है एक्चुअली ना किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का टॉप मोस्ट जो होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड पेंट हाउस। कोई अगर ऐसा अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसका सबसे टॉप फ्लोर, दैट इज़ कॉल्ड पेंट हाउस, और उसमें रूफ वगैरह सब मिलता है। ये भी बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है पेंट हाउस भी। अभी आप ऐसे बहुत सारे टर्म्स सुनोगे, स्टूडियो फ्लैट्स होते हैं। स्टूडियो फ्लैट्स जब आप थोड़े और बड़े हो गए तब उसके बारे में जानोगे, ये भी शहरों में ही देखने को मिलता है, स्टूडियो फ्लैट्स बोलते हैं, ठीक है। पेंट हाउस हो गया। पेंट हाउस जैसे मैंने बताया ना कि कोई अपार्टमेंट फ्लैट का सबसे टॉप फ्लोर जिसके साथ रूफ भी मिल जाएगा, दैट इज़ पेंट हाउस। देन स्टूडियो, ये स्टूडियो फ्लैट्स जो है ना, ये शहर में आपको देखने को मिलेगा। ये नया कॉन्सेप्ट है और आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गया है। इसमें कोई सेपरेट रूम नहीं होता है, ठीक है। और सब कुछ मतलब किचन भी है साथ में, वॉशरूम भी है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, लेकिन कोई ऐसा सेपरेट नहीं बना रहता है इसमें। ये एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो शहरों में बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसको हम बोलते हैं स्टूडियो फ्लैट्स, ठीक है। फिर आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है ना, इतने सारे मैंने आपके लिए नोट करके रखा हुआ था। सो ये भी मतलब ये अगर आप कभी सुनोगे तो आपको ये ना लगे कि मैम ने तो जब टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ाया था तो इसके बारे में तो बताया ही नहीं था, ठीक है। ये जो है ना, ये बहुत लग्जूरियस होता है। आपको सुन के लग रहा होगा ना कि क्या है, किसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर ही तो है, लेकिन क्या होता है इसमें बहुत लग्जूरियस फीचर्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे इसमें चीज़ें होती हैं ना कि हाई सीलिंग होता है, टेरेस होता है, और बहुत स्पेशल एक्सपेंसिव घर माना जाता है इसको, ठीक है। इस अगर पेंट हाउस में जो लोग रहते हैं ना, उनको पूरे शहर का व्यू देखने को मिलता है, पूरा शहर वो देख पाते हैं, और एक बहुत लग्जूरियस अपार्टमेंट होते हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब हमने जाना शहर के कुछ घरों के बारे में जिनके नाम आपने सुने होंगे, पर बहुत आपको डिटेल में शायद नहीं पता होगा। तो ये सारे आपके बुक में नहीं है, बट आई गेव यू दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू मे हैव हर्ड द नेम्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो आपको लगेगा कि मैम ने जब टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ाया था तो ये सारे हाउसेस के नाम तो कभी लिए ही नहीं। फार्म हाउस, बंगलोज, मेंशन, स्काई स्क्रैपर्स, पैलेस, विला, पेंट हाउस, स्टूडियो फ्लैट, ये वाला जो है ना, ये आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम जब थोड़े बड़े क्लास में जाओगे ना, फिर आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये हमने टाइप्स ऑफ हाउस डिस्कस कर लिया।
अब हमें डिस्कस करना है मटीरियल्स को, ठीक है। मटीरियल्स नीडेड टू मेक हाउस, मैंने आपको बताया था कच्चा हाउस किससे बनता है, पक्का हाउस किससे बनता है। अब उन मटीरियल्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, ओके। Topic is materials, materials, NEEDED, needed to BUILD, build a house। घर को बनाने के लिए हमें किन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मैंने लॉग केबिन का नाम लिया था ना, मैं भूल गई आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको लॉग केबिन का बारे में बताया था। लॉग केबिन क्या होता है, ये भी एक वुड का ही घर होता है, कॉटेज के जैसा होता है, लेकिन ये ना जो लॉग्स होते हैं, ट्री के लॉग्स, उससे बना हुआ होता है, ठीक है। टिम्बर लॉग जो आपने देखा होगा, पेड़ को काटने के बाद जो लॉग्स मिलते हैं गोल गोल से, सिलेंडर से, उनसे ये बना होता है, इसलिए इसको लॉग हाउस बोलते हैं। इट गिव्स अ लुक ऑफ अ कॉटेज बट इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कॉटेज, इट इज़ कॉल्ड लॉग हाउस, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम मटेरियल्स की, ठीक है। मटेरियल्स में है हमारा सिटीज़ के, पहले हम बात कर लेते हैं कि सिटीज़ में कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं घर बनाने के लिए, विच मटेरियल्स आर यूज्ड इन सिटीज़। तो हाउसेस इन सिटीज़, दे आर मेड ऑफ शहरों में जो घर होते हैं वो ज़्यादातर किससे बने होते हैं, ब्रिक्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स, स्टील, वुड भी यूज होता है, ऑफ कोर्स ग्लास यूज होता है, ओके। ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड, स्टील, वुड और ग्लास, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। वुड और ग्लास जनरली डोर्स एंड विंडोज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लास का यूज़ और वुड का यूज़ डोर्स विंडोज़ के लिए होता है, और फ्रेमवर्क में भी यूज़ हो जाता है, और बाकी चीज़ें जो बनती हैं घर के, वो सारा इन सब चीज़ों से बनता है। चिल्ड्रन, ये ब्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। सीमेंट जो है वो घर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं, एंड इट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग हाउस, उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर बन जाता है हमारा। देन और जैसा मैंने बताया ना कि अब ये सिर्फ ये सारी चीज़ें जो ना सिटीज़ तक ही वैसे नहीं रह गई, अब तो विलेजेस में भी आपको इसी मटेरियल से घर बने हुए दिखेंगे, विलेजेस में भी। लेकिन अभी जैसे उतने पॉपुलर नहीं है, विलेजेस में आपको हट्स भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो हम इसलिए हम सेपरेटली विलेजेस का नाम लिख लेते हैं कि विलेजेस में जो घर होते हैं वो ऐसे इन मटेरियल से बने हुए घर भी मिलेंगे, प्लस आपको जो दूसरे मटेरियल जिनसे कि हट्स बनते हैं, जिनसे कि कच्चे हाउस बनते हैं, वो वाले मटेरियल के घर भी आपको विलेजेस में मिलेंगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे अभी शहरों वाले घर अब गांव में भी बनने लगे हैं, धीरे धीरे अब वहाँ भी बनने लगे, क्योंकि गांव के लोग अब शहर में आ रहे हैं, वहाँ यहाँ पे नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, और फिर जब वो पैसा कमा के जाते हैं तो शहरों की का वो देख के जाते हैं, शहर से वो देख के गए होते हैं, तो फिर वो अपने गांव में भी अब पक्का ही घर बनवाते हैं। तो ये मटेरियल्स वाला टॉपिक हम अभी और आगे डिस्कस करेंगे।
आज के वीडियो को हम यहीं पे बंद कर लेते हैं। और अभी हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट रूफ्स हम डिस्कस करेंगे, और एक अच्छा घर किसे कहते हैं इस पे बात करेंगे, घर की साफ़ सफाई पे बात करेंगे, घर को डेकोरेशन करने के टॉपिक पर भी बात करेंगे। जब बात घर की हो रही है तो सब कुछ बात करेंगे, साफ़ सफाई, डेकोरेशन, एन आइडियल हाउस, ये सब डिस्कस करेंगे, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।